دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سنت کچھ اور چیز ہے تو آپ دونوں کو ایک کیسے کر سکتے ہیں نا؟ میں تو وہ کہہ رہا ہوں بریلوی ہے اور چیز ہے، اور اہل سنت اور مخالف ہے اس کا۔ ارے میرے بھائی، ہاں میرے پاس یہ بھی سوال کر لیجیے گا، پہلے جو میں نے پوچھا یہ تو بتائیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں اہل الحدیث ہوں، میں اصحاب الحدیث بھی ہوں، اہل الاثر بھی ہوں، سلفی بھی ہوں، مسلم بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا بول رہے پھر سے بولے؟ یہ بات ہو رہا ہے کہ میں اصحاب الحدیث ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اہل السنت والجماعت۔ ہلو امن بھائی، کیا میں کر لوں کیا ان سے بات؟ ہاں کر لو، کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، وسیلہ یہ استعانت پہ کرنا ہے نا؟ ہلو بھائی، ہلو۔ ہاں وسیلہ نہیں، کیا نام ہے بھائی جان؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ارمان ہے، ٹھیک ہے؟ ارمان بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ ویسے کہاں سے آپ؟ میں ویسٹ بنگال سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، تو ہم جو بات کریں گے یہاں پہ مطلب استعانت پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے غیر اللہ سے دعا کرنا، لفظ دعا۔ یعنی آپ بولے دعا، آپ کو دعا پہ بات کرنی ہے یا استعانت پہ بات کرنی ہے؟ مجھے دعا پہ بات، دعا کیا بول رہے ہیں؟ دعا پہ بات کریں، دعا۔ دعا پہ بات کرنی ہے تو کیا بات کرنی ہے؟ آپ تو بتائیں، اپنی وضاحت بتائیں کیا کیا غیر اللہ سے دعا مانگنا کیا ایسا ہے جس کا حکم کیا ہے؟ تو دعا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں۔ دیکھیں، دعا کا میننگ کیا ہوتا ہے، یہ بات پہلے سمجھنے کے لیے آپ کو عربی میں وہی پوچھا ہوں آپ کو، میں وہی پوچھا کہ دعا کا میننگ عربی کیا سے ہے؟ آپ کو اردو میں یا آپ کا جو لینگویج ہے اس میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹرانسلیٹ کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو دعا کا مطلب پکارنا بھی ہوتا ہے، بلانا بھی ہوتا ہے، ہاں مانگنا بھی ہوتا ہے، سوال کرنا بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں بہت سی جگہ پہ بہت سی معانے میں آیا ہے، اس کا سیاق کو دیکھ کر ہم اس کا حکم لگاتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانا یا مدد مانگنا یا پکارنا، یہ دعا ایک کا منٹ میننگ۔ فیصل بھائی، ایک منٹ۔ انصار بھائی جو ہے وہ جن سے بات ہوئی تھی وہ ایڈ ہو چکے ہیں کال پہ، فیصل بھائی۔ تو انصار بھائی چاہے تم، ورنہ فیصل بھائی تو بات کر رہے ہیں، ورنہ چاہے تم بات کر سکتے ہو۔ انصار بھائی آپ کریں گے کیا؟ جی بتائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیں۔ جی، ٹھیک نام کیا ہے، بھائی آپ کا؟ انور بھائی سامنے انور بھائی، ان سے کرنا ہے۔ انور بھائی، تو کوئی بات کر لے، کوئی پرابلم نہیں۔ ہلو۔ انصار بھائی، یہ جو تم سے بات کر رہے ہیں یہ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا نام ارمان ہے اور یہ ارمان، بات کرنے والے ہیں دعا پہ۔ تو لفظ دعا کی میننگ پہ بات چل رہی ہے کہ دعا کسے کہتے ہیں۔ فیصل بھائی وہی پوچھ رہے تھے، تو اب یہاں سے آپ کو بات اسٹارٹ کرنی ہے۔ جی بتائیے ارمان بھائی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نظر میں اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، یعنی غیر اللہ سے دعا کرنا، ٹھیک ہے، جیسا کہ یا مدد کرنا، میرا سنتان دے دے، مجھے نفع پہنچ دے، یہ سب پکرنا اللہ کے سوا غیر اللہ کو دعا کرنا، یعنی اس کا حکم کیا ہے؟ مانگنا یا دعا مانگنا، پہلے آپ یہ بتائیں۔ کیا بتاتے آپ؟ اللہ کے ساتھ دوسرے سے دعا مانگنا یا مدد مانگنا، پہلے آپ یہ کلیئر کریں۔ دعا مدد کے تعلق سے بات چل رہی ہے نا شاید، غیر اللہ سے مدد۔ ہاں، غیر اللہ مدد کیا ہے؟ دعا تو ایک مدد کا ذریعہ ہے، دعا ایک مدد مانگنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ دعا مدد مانگنے کا ذریعہ ہے۔ یہ آپ مانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں مانتا۔ آپ نہیں مانتے؟ نہ تو آپ کیا مانتے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے نہیں مانتا اس چیز کو میں۔
क्या अगर किसी शख्स को पुकारे कि या राम या कृष्ण मुझे मदद करना, तो ये जायज है या शिर्क है या सुन्नत है, आपकी क्या है? हमारी नजर में ये मुबाह है। ये मुबाह है। अगर कोई कृष्ण को पुकारे तो ये मुबाह है। हाँ? जी जी। आपने तो पुकारे तो इसको मुझे आपकी आवाज जो है ना बार बार बैठ रही है अरमान भाई, बार बार आवाज बैठ जा रही है आपकी। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर किसी शख्स ने जी हाँ ये मुस्लिम हो और किसी शख्स ये पुकारे के या कृष्ण मुझे मदद फरमा, मुझे संतान दे दे, तो ये आपके नजदीक मुबाह है ना? आपने किसको बताया पुकारे, किसको? कृष्णा हो या राम हो या किसी भी शख्स हो, मैं ये बोल रहा था नहीं रखता जिस आपका हेल्प करने का स्थिति आप नहीं रखता, उसको पुकारना कैसा है? अरमान भाई, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं ये बोल रहा था जैसे कि आप लोग एक दूसरे के जो दावे हैं ना वो ठीक से समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो किससे मदद मांगने को मुबाह कह रहे हैं और आप किससे मदद मांगने को शिर्क कह रहे हैं। ये थोड़ा सा मतलब वजाहत ले लें एक दूसरे से तो ज्यादा समझ में आएगी बात। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा करे दोनों में के 2-2 मिनट बात करें। हाँ, 2-2 मिनट फिर तय कर लें। 2-2 मिनट तय हो जाएंगे और मात्र 30 मिनट बात होगी। उसमें उसके अंदर रिजल्ट जो भी हो कॉल जो है वो काट दी जाएगी, फिर अगेन किसी दिन बात होगी, ठीक है? तो यहाँ पर 11:13 हो रहे हैं। 13 मिनट कम 12 बजे तक बात होगी, ठीक? ठीक है। 11:50 तक 11:50 तक तो ज्यादा हो जाएगी। हम करेंगे यहाँ से 11:13 हो रहा है ना, तो बात होगी 11:40 तक, चले। हाँ 11:40 तक। क्योंकि वो दूसरी जगह भी एक जगह बात करनी है ना, तो 11:40 तक बात होगी इंशाल्लाह, ठीक है? और 2-2 मिनट तय करके बात होगी। एक दूसरे का दावा जो है ना वो पहले समझ लें कि ये किन से मदद मांगने को मुबाह कह रहे हैं और आप किन से मदद मांगने को शिर्क कह रहे हैं, फिर उसी दावे के मातहत दलील पेश की जाएगी। तो बात शुरू करते हैं, ठीक है? पहले दावा अपना समझ लें और उसके बाद में जो है गुफ्तगू आगे होगी। जी अरमान भाई, आप अपना दावा करें। मेरा दावा ये है जी। गैरुल्लाह को दुआ करना ये शिर्क है। गैरुल्लाह से दुआ करना या मदद मांगना, पहले तो ये क्लियर करें आप। देखिए, गैरुल्लाह से दुआ करना, ठीक है? दुआ के जरिए से मदद मांगते हैं, दुआ के जरिए से ही मदद मांगना है। अब इसको अलग करके क्यों पूछते हैं? दुआ भी एक मदद मांगने का जरिया है। दुआ भी एक मदद मांगने का जरिया है, अल्लाह से या गैरुल्लाह से? हाँ जी, ये तो बताया जाएगा ना। अरमान भाई, हाँ जैसे कि हाँ बोलो। थोड़ी आवाज जो है ना थोड़ा तेज आवाज रखो, आवाज हल्की आ रही है आपकी, बहुत आवाज बार बार डाउन हो जा रही है आपकी। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो मेरा जवाब है तो फिर आपका बात जी आपका। अरमान भाई ये कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से दुआ करना इसको वो शिर्क समझते हैं, तो दुआ करना, हाँ इसको शिर्क समझते हैं। तो अगेन तुम्हें बताना है कि दुआ को तुम क्या समझते हो। उससे पहले आप लोग दुआ किसे कहते हैं इसको समझ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। हाँ मैं वही तो इनसे कह रहा हूँ अरमान भाई से, दुआ का मतलब क्या समझ रहे हैं, मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ उनसे। हाँ पहले आप उनसे दुआ की सही की तारीफ पूछ ले। देखिए मैं बता दिया, ठीक है? आप मैंने बता दिया, दुआ का मतलब है पुकारना भी होता है, बुलाना भी होता है, मांगना भी होता है, पहले करना भी होता है। जैसे नबी करीम अमन भाई, इनकी आवाज मुझे ऐसी आ रही है, आपको भी आ रही है आवाज इनकी घुट जा रही है बार बार? नहीं मुझे तो सही आ रही। तो मुझे आवाज इनकी बार बार ऐसे होता है। फैसल भाई तुम्हें कैसे आ रही? मेरे पास भी सही आवाज आ रही है। सही आ रही है, अच्छा। मेरे नेटवर्क में दिक्कत है शायद। थोड़ा नेटवर्क में आओ, थोड़ा खुले में आऊंगा तो फिर रोड पे आ जाऊंगा ना, गाड़ी बहुत होंगी रोड पे, मैं थोड़ा रोड पे आ जाऊंगा। अच्छा हाँ। छत वगैरह पे आ जाओ, छत वगैरह पे। चलो हाँ जी बता अरमान भाई।
हाँ, सूरह नमल के आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कौन है जो बेकारों की दुआ को कबूल करता है, ठीक है, जब वो किसी फैलते हैं और जमीन पर अगलों का नया बनाता है कि अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद है मगर बहुत कम लोग जिक्र वाले हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इस आयत में लफ्ज़ दुआ आया है, ठीक है। जब बंदा बेकरार होता है, मुसीबत में होता है, ठीक है ना, तो अल्लाह उसकी पुकार सुनते हैं। कौन सुनते हैं? अल्लाह सुनते हैं। अल्लाह समीउल अलीम है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक सिफात है। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है, आप सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ने इस आयत में क्या कहा? चैलेंज किया है कि कोई अल्लाह के अलावा जो के मुसीबतों में परेशानी दूर कर सकते, कौन कर सकता है? अल्लाह ने चैलेंज किया है यहाँ पर। दूसरी बात, कुफर की इस आयत से जुबान बंद हो गई, लेकिन कुछ फिरका बेरलविया कहते हैं कि अल्लाह है जो ये काम कर सके, अंबिया और अव्लिया, ठीक है। लेकिन ये चैलेंज क़यामत तक अल्लाह का रहेगा कि कोई नहीं है जो दुआ कबूल कर सकता है, ठीक है। चैलेंज कर दिया अल्लाह ने। सूरह नमल की ये आयत मैंने पढ़ी, तो आपने कहा नंबर भी बता दो इनको। 62 नंबर है। ठीक है, तुम बोलो अंसार भाई। देखिए अहमद भाई, आप ये करें, मॉडरेट करें, वो 2 मिनट बोले, हम 2 मिनट बोले, 2 या 3 मिनट से ज्यादा ना बोले। ठीक, आप बोले। हाँ अमन भाई, ये जो इन्होंने अभी आयत पेश करी है, तो अमन भाई असल में मैं जिस फोन से बात कर रहा हूँ, इसी फोन में मेरे उसमें ऐप है कि मतलब, तो मैं वो पढ़ नहीं पाऊंगा, तो पर मैं इनको एक आसान तरीके से बता देता हूँ इन्हें थोड़ा सा, कि जो इन्होंने भी बोला है आयत में कि कौन है जो अल्लाह के सिवा परेशानी में जो हो या तकलीफ में हो उसे मदद के लिए जा सके। अल्लाह के सिवा क्या कोई और इला भी है? इन्होंने यही कहा है ना। तो इला तो हम किसी भी वली को नहीं मानते, अल्लाह के सिवा किसी को इला मानते ही नहीं हम। इनसे मैं फिर एक ही सवाल कर रहा हूँ, इनसे पूछो कि दुआ का मतलब क्या लेते हैं ये। बताइए। हेलो अरमान भाई। हाँ, आप एक बार ये क्लियर कर दो कि दुआ से आप मतलब क्या लेते हैं। सिर्फ दुआ का मायना मतलब वो पूछ रहे हैं, मतलब और मायना पुकारना कहते हो या मदद मांगना कहते हो दुआ से, उसका आप मुझे हवाला साथ में दे दें। दुआ का मतलब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर दुआ का मतलब क्या है? दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह बकरा की 186 नंबर आयत में कहा है, इज़ा सअलका इबादी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावती दाई इज़ा दाआनी है, ठीक है। या दा के मतलब या क्या पुकारना है, ठीक है। या दा का मतलब पुकारने में आया है, जो कि इबादत है। और ये उलूहियत, तौहीद उलूहियत कहना है इसको, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं चलेगा। अब दुआ एक इबादत है, ठीक है। अब दुआ एक इबादत है। ये हदीस में आया है, सुनन तिरमिज़ी का हदीस है 2516। आप जो बातें ये हदीस है 2969, ठीक है। अरमान भाई, आपसे मैं ये कह रहा हूँ, आप जो भी बातें बता रहा हूँ वो सब बात सही है आपकी। आप जो, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, दुआ पुकारने को कहते हैं, यह कहना चाह रहे हो आप, या कुछ और कहना चाह रहे हो आप? ज्यादा लंबी बात को ना करके मुख्तसर सी बात करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। दुआ मतलब मैंने तो बता दिया, कुछ जगह दुआ मतलब पुकारना है, जहाँ पर गायब में आए हैं, गायब में पुकारने की बात, मदद मांगने की बात आया है गायब में, ठीक है, वो अल्लाह के लिए आया है। किसी नबी औलिया के लिए गायब में पुकारने के लिए कोई भी नफ्स कतई से आप साबित नहीं कर सकते कि वहाँ पर। तो वो अगर गायब में हम किसी को पुकारते हैं तो वो शिर्क है जी। क्योंकि शिर्क किस लिए है मैं बताता हूँ। नहीं, आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद बताना, आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें आप।
हाँ, जो गायब में पुकारते हैं ये बिल्कुल जी। ये शिरक है, क्योंकि इसका तफसील मैं बताता हूँ जी। किस एतबार से मैं इसको शिरक समझता हूँ। जी कि जी यहाँ पर उन्होंने इसको क्या समझ रखा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो सब कुछ के ऊपर कादिर है, ठीक है। जी अल्लाह जी सुब्हानहू तआला दुआ को कबूल करने वाला है, ये अल्लाह के खासा है। अल्लाह के खासा अगर किसी बंदो या मखलूक को दे दी जाए तो ये शिरक हुआ ना, शिरक हुआ या ना हुआ? यही है। अल्लाह तो बिल्कुल ये शिरक है, आपके नजदीक भी ये शिरक है, तो इख्तिलाफ तो खत्म हो गया ना। नहीं खत्म हुआ, आप समझ नहीं पा रहा अरमान भाई। क्यों गैब क्यों में नहीं खत्म हुआ? गैब में किसी को पुकारना, मान ले मेरे भाई, कुरान के आयत को मान ले। अरमान भाई मैं आपकी सिर्फ सुन रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दें आप, उसके बाद में आप अपनी वजाहत करें। मैं कह रहा हूँ गैब में पुकारना शिरक है, हाँ या ना? आप बोले कि गायब में पुकारना शिरक नहीं है क्या? ना। देखिए गायब में, हाँ गायब में पुकारना शिरक है, ये किस लिए है मैंने बता दिया। आप अगर इसका है शिरक है गैब में पुकारना? मैंने बता दिया कि दुआ इबादत है, इबादत अल्लाह की। ओहो, क्लियर कर दो। अगर आपको अपने अकीदे के बारे में नहीं पता तो ये बोल दो कि मुझे पता नहीं, या ये बोलो डायरेक्ट कि है ना, आपको सुन्नी कहलाते हैं। और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुआ हो इबादत, दुआ एक इबादत है और इबादत अल्लाह के सिवा किसी के नहीं। इय्याका नअबुदु, अल्लाह के लिए ही इबादत होता है, तौहीद यही है ना। तो दुआ एक इबादत है, ये हमारे नबी ने फरमाया है और इस पे हमारा ईमान है और हम इसको मानते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं दुआ का मतलब पुकारना आप लेते हो, गैब में पुकारना शिरक है, उसकी आप हाँ कर दें कि हाँ गैब में पुकारना शिरक है। अब मैंने तो कहा ना शिरक है, मैंने तो कहा शिरक है। अब आप इसकी दलील दे दें मुझे। देखिए आप दी मैं बात करता हूँ। आपने मान लिया कि दुआ एक इबादत है जी। जब अगर आपने मान लिया कि दुआ इबादत है और इबादत अल्लाह के सिवा किसी का नहीं होता, आप भी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, तो यह इख्तिलाफ खत्म हो गया और आप भी मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका जो शुबा थे मैंने समझा कि आप कह रहे हैं कि गैब में पुकारना ये शिरक होगा या नहीं होगा। जी। देखिए शिरक तभी होता है जब किसी को आप अल्लाह के जो तौहीद है, तौहीद से रुबूबिया हो, तौहीद उलूहिया हो, अपना सिफत हो, किसी को उससे शरीक ठहरा तो शिरक होता है, ठीक है। अल्लाह के सिवा आप अगर आप किसी को पुकारते हैं तो ये अल्लाह के लिए ही पुकारने का ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा, आप क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इसकी आप दलील दें मुझे कुरान और हदीस से। मैंने तो दलील दे दिया। हाँ दे दो भाई, आप तो अपनी वजाहत कर रहे हो कि गैब में पुकारना अल्लाह, गैब में अल्लाह के सिवा किसी गैर को पुकारना शिरक है। इसकी दलील दें आप कुरान से और हदीस से। ठीक है मतलब जी हाँ। अरमान भाई पॉइंट टू पॉइंट बात करें, बताता हूँ। हाँ मुख्तसर बात करें, मुख्तसर बात करता हूँ। जी जी। सूरह जिन आयत नंबर 1 आखिर आयत में था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सूरह यूनुस के 6 नंबर आयत, वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुरुका, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो जो तुम्हारे कोई नफा और नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। ये आयत सूरह यूनुस का 6 नंबर आयत चला गया। फल ईया तदऊन, ये है सूरह अनआम की 40 से 41 नंबर आयत, ठीक है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सूरह फातिर के 22 नंबर आयत, वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, यहाँ कब्र वालों को नहीं सुना सकते, ठीक है जी। यहाँ पर सूरह फातिर के 22 नंबर आयत है। सूरह फातिर की आयत नंबर क्या बता रहे हो अरमान भैया? 22। अब 1 मिनट में मैं वो आयत निकाल के 1 मिनट पढ़ के फिर आपको जवाब देता हूँ। नहीं मेरा बात खत्म नहीं हुआ। अच्छा खत्म नहीं हुआ, तो आप इतनी आयतें बता दोगे फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं निकालूंगा उनको। मैं इस वजह से बोला था पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना तो वो बेहतर रहता। ओके आप करे, मेरा बात खत्म हो गया। तो सूरह फातिर की आयत नंबर 22 निकाल के मैं उसको पढ़ूंगा एक बार।
हाँ पढ़े आप पढ़े। या और कोई चीज पढ़नी, या जो कोई और चीज पढ़नी है वो बता दें। 18 पढ़े, पहले सूरज जिन के 8 नंबर आयत मैंने पढ़ी, उसके लिए सूरज जिन आयत नंबर 18। हाँ 1 मिनट। और ये मस्जिद अदा के लिए है, इसलिए हमने अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारा जाए। जी अरमान भाई, हेलो। जी जी बोले। अरमान भाई, जो आपने सूरज जिन की आयत नंबर 18 बोली है, उसमें लिखा है और अल्लाह के सिवा मस्जिदों में अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारा जाए, यही है ना? हाँ अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारा जाए, ऐसी है? जी बोले बोले ना बात। ऐसी है या नहीं, ये तो बता दें आप। हाँ आप पढ़े। मैंने पढ़ा जब तो बोल रहा हूँ आपसे, उसमें लिखा है, एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ। और ये मस्जिद और ये कि मस्जिद अल्लाह के लिए हैं, इसलिए उनमें अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारा जाए, ऐसी है? हाँ कुछ गलती हो तो बताएं आप मुझे। नहीं आप पढ़े ना। पढ़ तो दी अरमान भाई, पढ़ तो दी, और पढ़नी तो बताओ। तो आप इसका रद्द करें, मैंने जो इसका रद्द के आयत का, कुरान का रद्द करूंगा क्या मैं आपके अकीदे का रद्द कर सकता हूँ। इस बात से, इस आयत से जो आप अपना मतलब दिखा रहे हैं उसका रद्द कर सकता हूँ बस मैं, कुरान का रद्द थोड़ी करूंगा मैं। हदीस का तो आप रद्द कर देते हैं, कुरान का तो हदीस से कौन सा रद्द कर दिया हमने? नहीं मानते कुरान का भी तो वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें लिखा है कि मस्जिदों में अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारें, ये लिखा है ना? हाँ लिखा है। तो जी ठीक लिखा है, बताइए। हाँ, तो अब मैं ये कहना चाह रहा था, अल्लाह के साथ किसको पुकारा जाता है मस्जिदों के अंदर, आप ये बता दें। हाँ मस्जिद के अंदर शिया लोग तो अली को भी बुलाते हैं। अरे शियाओं से बात कर रहा हूँ या अहले सुन्नत से बात कर रहा हूँ आप? अहले सुन्नत के लोग, मैंने सुना है कि दुआ में वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी पुकारते हैं, वसीला लगाते हैं वो तो। वसीला के बाद तो बाद में आएंगे। अब तो या देखो, आप सुनने की कह रहे हो, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने तो ये अहले हदीसों के मुंह से सुना है कि हम अल्लाह से भी दुआ नहीं करते। तो मैं अब ये बात माननी थोड़ी है, मेरे सुनने से थोड़ा होता है, उसको दलील देनी पड़ेगी। तो अरमान भाई, आप वसीला से पुकारना जायज समझते हैं या मुतलकन पुकारना जायज समझते हैं? वसीले से हम अल्लाह से मदद मांगना जायज समझते हैं। आप वसीले के बगैर नहीं जायज समझते? वसीले के बगैर तो अफजल है। वसीले के बगैर अफजल है जी। अल्लाह से डायरेक्ट मांगना किसने मना करा है? देखिए अल्लाह की अता से आप पहले तो आप देखो अरमान भाई, आप टॉपिक को मत घुमाओ। पहले आपने जो आयत पेश करी थी, उस आयत पे आपने झूठ बोला है, वो वहाँ से आप भागो मत। पहले आपने बोला कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, उसमें लिखा है अल्लाह मस्जिद अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा इसमें किसी और को ना पुकारा जाए अल्लाह के साथ। आपने उसमें ये लिखा है, आपने कहा कि आप लोग मस्जिदों में गौस पाक को पुकारते हैं, यही कहा है ना आपने? हाँ मेरा यहाँ पर मस्जिद में मैंने सुना है ना। नहीं, आपका अहाता नहीं चलेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे दलील देनी पड़ेगी। या तो हमारे किसी अकाबिर का लिखत जो होती है, किताब जो होती है, फतवा जो होता है वो देना पड़ेगी, इबारत देनी पड़ेगी, ऐसा होता है। ठीक है अरमान भाई, अब मैं कह दूं कि मैंने ये सुना है, मैंने वो सुना, वो नहीं चलता है। ठीक है जी। पहली आयत पे आपने झूठ बोला। मैंने कहा झूठ बोला? मैंने अभी आपने बोला कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारें, उसमें खास लिखा है मस्जिद में अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारें। आपने मुतलकन कह दिया, और हालांकि इतना आपको भी पता होगा, आप भी पुकारते होंगे ना, उसमें गैब का अल्फाज है कि गैब में ना पुकारें। आपने ये भी झूठ बोला है। यह गैब का अल्फाज है तो आप मुझे उसमें बताएं कि इस जगह गैब का अल्फाज है।
کہ آپ نے کہا کہ اکابر سے دکھا دے، لیکن آپ کا جال حق احمد یار قندائل نے لکھا ہے کہ عقیدے میں تقلید یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ جی عقیدے میں تقلید ناجائز ہے، آپ کو قرآن کی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ تو میں کہتا رہا ہوں قرآن سے آپ دکھاتے، قرآن پہ تو آپ جھوٹ بول کے نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، آپ عقیدے میں تقلید نہیں چلتی، بات صحیح ہے اور ہم بھی اس بات کو مان رہے ہیں، آپ قرآن سے دکھائیں۔ آپ کا گھر کا امام نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا ابھی آپ قرآن اور حدیث پر آئیں، ٹھیک ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، عقیدے کے معاملے میں آپ کے پاس کیا حجت ہے؟ قرآن اور خبر متواتر حدیث، خبر آپ نہیں مانتے عقیدے میں؟ ارمن بھائی جو آیت آپ نے بتائی سورہ جن آیت نمبر 18 آپ نے بتائی، ہاں واپس تو مطلق نفی کر دیا۔ ایک کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا واپس نافی کی نہ ہی کسی ہے نا، اس میں یہ لکھا ہے مسجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے، یہی لکھا ہے نا؟ ہاں تو مسجد تو اللہ کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلے تو آپ نے یہ بولا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، غیب، اس میں غیب کا الفاظ نہیں ہے، پہلی بات یہ بات آپ نے ایڈ کری قرآن کی آیت میں، ایڈ کری یا نہیں کری؟ میں نے ادھر قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ہاں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے، غیب میں آپ برابر بول رہے ہیں اس بات کو، میں نے اس بات سے آپ سے تصدیق کروائی ہے، غیب میں پکارنا شرک ہے، آپ سے میں نے تصدیق کروائی تھی اس بات کی، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے اس دعوے پہ اپنے یہ دلیل دی ہے مجھے، دیے یا نہیں؟ ہاں میں نے دیا نہیں، ویسے آپ نے وہ دلیل دی جس دلیل میں آپ کا مطلب نہیں نکل رہا، تو اس آیت میں آپ اپنا مطلب ڈال رہے ہو نا۔ اشارہ تو نص مل رہا ہے اسے، کہاں سے اشارہ بتاؤ، چلو اس میں کہاں سے اشارہ دکھاؤ مجھے؟ جیسے کہ عمران بھائی ایک منٹ میں کچھ بولتا ہوں۔ جیسے یہ جو انصار بھائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ غیب میں پکارنا شرک ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی، ظاہر میں پکارنے کے آپ بھی اس کے انکاری نہیں ہے، نہ انصار بھائی انکاری ہے کہ کسی کو ظاہر میں پکارا جائے۔ اللہ رب العزت سے آپ نے کہا کہ غیب میں پکارنا جو ہے وہ شرک ہے، تو آپ کو جو دلیل دینی ہے وہ غیب میں پکارنے کی دینی ہے، جبکہ آپ نے جو دلیل دی ہے اس کے اندر غیب کا ذکر نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں انصار بھائی۔ تو آپ دلیل دیں گے کہ غیب میں نہ پکارا جائے، تو اس چیز کا فرق کیا اللہ رب العزت نے کیا کہ تم ظاہر میں پکارو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور وہی چیز تم غیب میں جب پکارو تو صرف اللہ کو پکارو۔ اس چیز کی وضاحت کے ساتھ چونکہ آپ کا دعویٰ ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے کہیں نہیں فرمایا وہاں جہاں آپ نے جو دلیل دی ہے کہ غیب میں صرف اللہ کو پکارو، ظاہری میں کسی کو بھی پکار لو، یہ تو نہیں ہے نا، غیب کی وضاحت تو نہیں ہے وہاں، تو مطلقاً ہے کہ کسی کو نہ پکارو اللہ کے سوا۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں انصار بھائی کہ تمہارا دعویٰ ہے غیب کا، تو غیب میں کوئی دلیل آپ کو دینی ہوگی انصار بھائی۔ عمران بھائی، میں نے بولا امن بھائی ان سے میں نے بولا تھا غیب میں پکارنا شرک ہے، اس کی دلیل دیں، تو اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے نا۔ ہاں لیکن اس میں غیب کا ذکر نہیں ہے، بات یہ ہے، دیکھو یہ تم بھی جانتے ہو، یہ الفاظ اپنے ایڈ کر رہے ہیں نا اس میں، پھر ہاں غیب کا ذکر نہیں ہے۔ بتاتا ہوں غیب میں یہ پکارنا یہ شرک دوسرے دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تو بات ایسے گھمائیں گے تو بات نہیں بن پائے گا۔ گھمانے والی بات نہیں ہے عمران بھائی، گھمانے والی نہیں ہے، میں جواب دے رہا ہوں نا۔ ہاں جیسے سنیے آپ نے کہا غیب میں پکارنا شرک ہے، تو غیب میں پکارنے کی آپ دلیل دیں گے تو اس میں گھمانے والی بات نہیں، جس میں ہے وضاحت وہ دلیل دے دیں آپ بس، سمپل۔ میں بات کرتا ہوں، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نفع اور نقصان کے مالک سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ مومنون کے آیت نمبر 88 سے 89 تک۔ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے یعنی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، یہاں پر کیا اس میں کیا بات آ رہی ہے، غائب یا ظاہر میں بات آ رہی ہے؟ آپ اس کا جواب، اس میں لکھا ہی نہیں ہے، اس کا جواب نہیں۔ ایک منٹ ارمان بھائی، یہ پارہ نمبر اور آیت نمبر بتائیں مجھے، میں جواب دے رہا ہوں نا۔ سورہ مومنون کے 23 نمبر، سورہ کے 88 نمبر آیت،
کہ سورہ مومن آیت نمبر 23 لاسٹ والی 23 ہی آیتیں ہیں اس میں، لاسٹ والی بتا رہے ہیں. بھائی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ کا مالکانہ ہے نا. جی جی. تو یہ بات یہ ہے. تو اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ملکیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ربوبیت میں شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ ظاہر میں کسی کو ملکیت مانگے تو وہ شرک ہوگا. یہ سورہ مومنین میں جو ہے نا وہ پڑھ کے سنا دو، جو ہے وہ تھوڑا تو اور زیادہ بہتر ہوگا. آیت نمبر 23 میں پڑھ لوں؟ ہے امن بھائی؟ ہاں پڑھ لو. ایک منٹ ارمان بھائی، ایک منٹ رکو، میں پڑھ رہا ہوں. اور ارمان بھائی آپ نے سورہ جن کی کون سی آیت پیش کی تھی؟ 18. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف. سورہ مومن، اس میں تو ایسا کچھ ہے نہیں. مومن نہیں جی 23 نمبر سورہ کا ہے نا. 23 نمبر سورہ، آیت نمبر 23 نمبر سورہ کی آیت نمبر ہے. ملا آپ کو؟ ملا نہ، آپ بتائیں، مجھے بھی تو نکالوں گا. مجھے 23 نمبر ہے سورہ مومنین کی آیت نمبر 23 بتا رہے ہیں. اس میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں 84 نمبر آیت میں جو ہے قل لمن الارض، ٹھیک ہے، ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یعنی زمین و آسمان میں، زمین میں جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کس کا ہے، تو ملکیت کون ہے، ٹھیک ہے. امن بھائی یہ بات کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں. ہاں تو کلیئر کریں، آپ کلیئر کریں. تو یہ مجھے بتا بھی تو رہا. اب یہ آیت نمبر 83 بتا کے نہ پارہ نمبر بتا رہے ہیں نہ سورہ نمبر بتا رہے. اور جو سورہ مومن کی آیت نمبر 23 بتائی ہے اس میں تو وہ ذکر ہی نہیں، جو ذکر ہی بتا رہے. اس میں تو لگا ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان کو قارون کی طرف. بس نہیں وہ آیت نہیں بھائی، سنیں آپ آیت بتانا مجھے. سورہ مومنون کہتے ہیں نا، قد افلح المؤمنون سے جو شروع ہوتا ہے 23 نمبر سورہ، اس کا آیت نمبر 88 ہے. آیت نمبر 88. ہاں ایک منٹ دیکھیے. ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اختیار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. جی ارمان بھائی بتائیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ سب کچھ کا مالک ہے، ٹھیک ہے. بالکل اور بالکل. دنیا بھی مالک ہوتا ہے، دنیا بھی کچھ ملکیت ہوتا ہے، کچھ کے انسانوں کے اندر، مخلوق کے اندر بھی کچھ ملکیت میں آتے ہیں. اللہ ہی وہ عطا سے آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر ظاہری لکھا ہے یا یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے غائبی لکھا ہے. اپنی اس بات کا وضاحت کرے کہ ظاہری میں فٹ کریں گے یا غائبی میں فٹ کریں گے. یعنی یہ ذاتی ہے، اس میں یہ اللہ کا ذاتی ہے. اب میں آپ کو ایک
वही बताना चाहता हूँ। हाँ, मेरा बात समझ गया मेरे भाई। मैं वही बताना चाहता हूँ, इसका आप अगर जाति कहते हैं तो इस जो बुनियाद पर जो नस इसका इशारा मिलता है या दलालत किसी और नस से दलालत करती है ये, तो मैं भी कहता हूँ कि वो भी मैंने जब पढ़ा है ना, फला तदउ मा अल्लाह अहद, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, तो ये इबादत है, इबादत अल्लाह के लिए नहीं कर सकता। तो दूसरी आयत से साबित होता है कि गायब में अल्लाह को किसी नबी ने भी नहीं पुकारा, सॉरी अल्लाह को तो पुकारा, लेकिन अल्लाह के सिवा सहाबी ने किसी को नहीं पुकारा। किसी सहाबी से आप साबित कर दे कि किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या किसी औलिया हो कि गायब में पुकारा हो, गायब में पुकारा हो और ये अकीदा रखा हो कि वो भी गायब में हेल्प कर सकते अल्लाह के जरिए के बगैर। अच्छा, तो अरमान भाई मैं ये कह रहा था, मैंने अभी आपको अपना दावा बताया था, हमारा दावा जो है वो मुबा है। हमने ये तो कहा नहीं कि हम नबी से साबित करेंगे मदद मांग रहे गैब से। हमने ये बात कही आपसे? नहीं कही, लेकिन मैं आपको ये कहते हैं, आप अगर नहीं कहे तो क्या हुआ? आपका तो जमहूरियत कहते हैं, आपका जो फिर आप फिर कहते हुए पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ आपकी बात मेरे से हो रही है, आप मेरे से बात करें, मेरे से दलाइल लें, अपने दलाइल लें। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मैंने तो ये भी सुना है, वो आपके एक आलिम है कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में कहा है कि अहले हदीस गैरुल्लाह को तो छोड़ो, अल्लाह से भी नहीं मांगते हैं। मैं वो वीडियो भेज दूँ आपको, बताओ तो। आप तो आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपके आलिम की बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट बात मेरे से कर रहे हैं, तो मुझे आप दलाइल देंगे, मैं आपको दलाइल दूंगा उसके। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उसको मुझे बताएं कि आप गलत बोल रहे हैं अंसारी साहब। मैं उस बात को शायरी क्या लिखा है आपको पता है? वो लिखा है शरीह सहीह मुस्लिम में खंड नंबर 2 पेज नंबर 545, ठीक है। गुलाम रसूल साहिबी उन्होंने लिखा है कि इस सिलसिले में सही कायदा ये है कि जिस खास इबादत के करने को यानी जो इबादत है उसमें अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तर्क कर देते हैं, ठीक है, तो बिदअत होता है। तो ये आप जो मुबाह कह रहे हैं इसको मैंने बिदअत साबित कर दिया। अगर आप इसको से साबित नहीं कर सकते तो बिदअत हो आपके घर से ही आप किससे साबित नहीं कर सकते? यहाँ पर एक उसूल बयान कर रहा है अल्लामा गुलाम रसूल साहिबी। आपका जो दावा है ना शिर्क का, वो आपको कुरान और हदीस से लेना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि इबादत आपने भी मान लिया ना कि इबादत। क्या मान लिया? दुआ एक इबादत है। दुआ इबादत है। दुआ से मतलब जो अल्लाह से करते हैं वो इबादत है। आप दुआ का मतलब पुकारना ले रहे हैं और गैर में पुकारना शिर्क है। उसकी आप दलील दे रहे हैं सूरह जिन आयत नंबर 18, उसमें ऐसा कुछ आया नहीं जो आपने बताया। ठीक है अरमान भाई, अब आप दूसरी आयत पेश करें, मैं उसको पढ़ के फिर आपको जवाब दूंगा। मैं कुरान का रद्द नहीं करूंगा, मैं कुरान से जो आप अरमान भाई सुने, आप बहस और जिद करने की जरूरत नहीं। आप सुने मेरी बात ध्यान से। आपको मैंने जो दलील दी उसका आप मुझे जो मैंने आपसे पूछा आपने उसकी मुझे दलील दी कुरान की। मैंने कुरान की आयत पढ़ के जो कुरान का मतलब है वो मैंने आपको बताया। जो आप अपना मतलब डाल रहे हैं वो आपका मैंने रद्द कर दिया। मैंने कुरान का रद्द नहीं करा, कभी आप सोचे मैंने कुरान का रद्द करा, मैंने आपका मतलब का रद्द करा। अब आप दूसरी आयत दें या हदीस दें, मैं वो पढ़ के आपके मतलब का रद्द करूंगा। इंशाल्लाह हदीस और कुरान हमारे ही फेवर में आएगी। जी अरमान भाई, आप दूसरी दलील पेश करें अपनी। नहीं, मैंने दलील तो पेश कर दिया। दलील तो पेश कर उस दलील में ये जो आपने सूरह जिन की आयत नंबर 18 बताई उसमें लिखा है गैर में पुकारना शिर्क है। मैंने भी तो कहा कि वो जो मुल्कियत अल्लाह की है वहाँ पर कहाँ पर वो जाति लिखा हुआ है। क्या जाति लिखा हुआ है? क्या जाति लिखा हुआ है कि हमने तो जाति और अदाई का फर्क मैं आपको बता दूं? नहीं, यहाँ पर लफ्ज़ है। नहीं, मैं आपसे बताऊंगा ना जाति। अरमान भाई मैं बता तो रहा हूँ, आप सुना तो करो आप अरमान भाई। मैं आपको जाति और अताई का फर्क हदीस से बताता हूँ। आप कहें तो पेश करूँ हदीस? नहीं पेश करना, लेकिन मेरा बात नहीं करना। हाँ, नहीं सुन पाओगे ना आप? नहीं सुनूंगा। पहले मेरा बात पहले सुने जी। पहले तो आप अरमान भाई थोड़ा तेज बोलें। मैंने आपसे पहले बोला बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। मेरा बात ये है, आप क्या कर रहे हो? दुआ की इबादत नहीं है। देखें अब मेरी बात सुने।
यहाँ पर टाइم चूंकि 30 मिनट से काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है, तो बात यहाँ पर कंटिन्यू से खत्म करते हैं क्योंकि टाइम आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। ठीक है अरमान भाई, हाँ ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बात करेंगे फिर इसके आगे की इंशाल्लाह। तो बात ये है कि सूरज जिन की जैसे जो तुमने आयत करीमा पेश की थी कि मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ किसी और की इबादत ना की जाए, तो ये बिल्कुल बात सही है। मस्जिद हो या फिर मस्जिद के अलग भी कोई जगह हो, तो वहाँ इबादत जो है वो अल्लाह की ही होगी, वहाँ पुकारने की बात नहीं हो रही है। इसका शान नुज़ूल ये है आयत करीमा का कि जब सहाबा नबी अलैहिस्सलाम से दूर हो गए कुछ सहाबा, तो उन्होंने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपसे दूर हैं, पहले हम आपके साथ नमाज पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई और फरमाया, ए महबूब तुम कह दो कि मस्जिद खुदा का घर है और वहाँ सिर्फ खुदा की ही इबादत होगी, यानी कि तुम भले ही पहले मेरे साथ नमाज पढ़ते थे, लेकिन मस्जिद तो खुदा का घर है, वहाँ तो अल्लाह की इबादत होती है, तो लिहाजा इबादत तो अल्लाह ही की जाएगी। यानी कि तुम हमसे दूर भी हो, तुम जहाँ भी हो, इबादत अल्लाह की जाती है, तुम अल्लाह की इबादत करो। ये समझाने के लिए था, ना कि ये था पुकारने का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था कि मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ किसी और को ना पुकारो। यहाँ इबादत की बात चल रही है, क्योंकि मस्जिदों में इबादत होती है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादत के लिए कहा, शान नुज़ूल भी यही था। तो यहाँ गैब में भी कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, पुकारने का भी कोई नहीं था। और अंसार भाई आपसे ये कह रहे थे कि गैब में पुकारने की मुझे दलील दो। आप जो भी दलील दे रहे थे वो मुतलकन पुकारने की थी, तो मुतलकन पुकारने को तो तुम भी गलत नहीं कहते, तुम कहते हो कि हम हाँ। देखिए अमन भाई, मैं इसका जवाब दे दूं ताकि खुला जवाब एक भी जवाब दे। वो भाई ने मेरे पास जो दलील का मुताला कर रहे थे गैब में पुकारने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से बात हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है बात करने में। तो बात ये है कि उन्होंने मुझे मुताला दिया को यहाँ गैब का लफ्ज दिखाया, हर चीज में लफ्ज दिखाना ये जरूरी नहीं होता। मेरे वो जो एक मिनट अरमान भाई मैं बात एक मिनट दीजिए मुझे, चलिए बोलिए। हाँ, वो जो बात उन्होंने कही, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी नबी या औलिया या किसी सहाबी ने भी नहीं पुकारा अल्लाह के सिवा किसी को, यानी गायब में। ये बड़ा दलील है। दूसरी मैंने ये साबित करने की कोशिश किया, वहाँ पर उन्होंने मुताला किया गया गायब का लफ्ज दिखाओ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित होता है कि जब चाहो तो अल्लाह ही से चाहो, ठीक है, ये जो तिरमिज़ी की हदीस है। ठीक है, ये सारी बातें तो बिल्कुल सही है, आपकी बातें सब ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे नाट हो गए प्लीज, मैं बात एक मिनट में खत्म करते हैं। इन तदउहुम ला यस्माउ दुआअकुम, ये सूरह फातिर की 13 और 14 नंबर आयत है। ये दुआअकुम ला यस्माउ, वो नहीं सुनते, दुआअकुम तुम्हारा जो दुआ है वो नहीं सुनते, यानी अल्लाह के सिवा जिसको तुम पुकारते हो, वली हो औलिया हो जो भी हो, यहाँ पर मुतलकन कहा के दुआ तुम नहीं सुनते तुम्हारा दुआ, वाला समिया मस्तजाब लकुम, उसका पुकार को ये उससे आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। कौन नहीं सुनते, ये भी बता दो, कौन नहीं सुनते? दुआ जाहिरी तौर पर ये दुआ करना साबित है, मदद मांगना साबित है, लेकिन गायब में जो दुआ होता है ना वो उससे मुस्तस्ना है। वो जो आपने अभी बताया था कि ये नहीं सुनते तुम्हारी दुआ, वो अरे आया है जो कौन थे, किन से कहा गया था, वो पूछ रहा हूँ मैं आयत निकाल रहा हूँ मन में वाली। हाँ, जो वो आयत तो मुतलक है, लेकिन जाहिर में पुकारना ये जायज है, मुतलक है ना, तो फिर आप उससे गैब का, आप उसका इमरान भाई आप उससे गैब मुराद कहाँ से ले रहे हैं जब मुतलक है? कोई हर्ज नहीं, ये तो हदीस से भी भाई अगर आप बार बार एक ही बात दोहराएंगे, इमरान भाई अगर आप बार बार भी एक बात दोहराएंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपने जो अभी खुद ही कहा कि यहाँ मुतलक मुराद है, तो मुतलक पे ना तुम्हारा इख्तिलाफ है ना हमारा। तुम ये कह रहे हो कि गैब में पुकारना शिरक है, तो तुमसे यही पूछा जा रहा है कि गैब में पुकारना शिरक है, इसकी कोई आप दलील दें। तो आपने जो दलील दी है कि ये तुम्हारी नहीं सुनते दुआएं, तो ये किन से कहा जा रहा है, कौन नहीं सुनते?
इसका आपने बताया। अरमान भाई आपको मैं 15 सेकंड देता हूँ, आप इसकी वजाहत करें कि कौन नहीं सुनते दुआएं। देखिए दुआ नहीं सुनते, जो अल्लाह के सिवा किसी भी नहीं दुआ कबूल कर सकते। ये आपने जो दलील दी है ये किन के बारे में है, कौन नहीं सुनते? कोई भी नहीं सुनते, अल्लाह के कोई सिवा। भी नहीं कोई देख, कुरान में जो आयत करीमा नाजिल हुई है तो ये किन के बारे में हुई है? नबी अलैहिस्सलाम ने किन को पढ़ के सुनाई, सहाबा को या फिर मुशरिकीन को? ये तो सहाबा का लिए शिक्षा है कि किसी को नहीं पुकारना। ये सहाबा को पढ़ के सुनाई ना कि तुम दुआ नहीं कर सकते। इब्न अब्बास ने भी इसका मतलब इसके यही शिक्षा लिया है कि शिक्षा लिया है कि तिरमिज़ी हदीस में नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। जैसे आप जो कह रहे थे इमरान भाई, सुनिए, आपने जो ये कहा ना कि दुआ नहीं सुन सकते, पहले ये बताइए दलील कहाँ से आप पढ़ रहे थे, कौन सी दलील है ये? आप दुआएं नहीं सुना सकते ये वाली कौन सी दलील, कौन सी पढ़ी आपने, जरा वो बताएं नंबर। सूरह यूनुस का जो 106 नंबर आयत में मैंने पढ़ी थी कि वहाँ पर सूरह यूनुस का 106 नंबर आयत, ठीक है। हाँ, क्या है उसमें? देखो बहुत सारी दलील है हमारे पास, ठीक है, बात तो आज मुख्तसर हो गया है। हाँ वो तो भाई देखो दलील ऐसे होते हैं, आप कुरान की आयतें पेश करोगे, देखो कुरान की आयतें 106 में है, एक मिनट सर, 106 में है, और खुदा को छोड़ कर ऐसी चीज को ना पुकारना जो ना तुम्हारा कुछ भला कर सके और ना कुछ बिगाड़ सके, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। यहाँ पर तो ऐसा लिखा ही नहीं है कि ये तुम्हारी दुआएं नहीं सुनते, और आपने ये कहा था कि कोई भी, तो यहाँ कोई भी का लफ्ज है ही नहीं, जबकि यहाँ पर ये है कि और खुदा को छोड़कर ऐसी चीजों को ना पुकारना जो ना तुम्हारा कुछ भला कर सके और ना कुछ बिगाड़ सके। अल्लाह उन चीजों के बारे में कह रहा है कि उस चीज को मत पुकारना कि जो तुम्हारा भला भी ना कर सके और ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, उसकी नफी है यहाँ पर। जबकि हम तो उनको पुकारते हैं कि जो हमारा भला भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हो? तो ये उनके बारे में, यहाँ ऐसा है ही नहीं कि तुम उनसे दुआ नहीं कर सकते। तो ये बात आपकी गलत साबित हुई, कुरान शरीफ में आपकी ये बात जो वो है ना आपकी, वो झूठ साबित हुई। अरमान भाई देखे इसमें कहाँ पर ये है कि उनसे तुम दुआ वो सुन नहीं सकते? मेरा इस्तिदलाल है, मेरा इस्तिदलाल कुरान की। अच्छा ठीक है, आपका इस्तिदलाल है, आपका इस्तिदलाल है ना। सुनिए, अब मैं मुख्तसर एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपका इस्तिदलाल है ना ये? सुनिए आपका, अच्छा ये मुझे सिर्फ इतना बताए, क्या गैब के साथ कोई आयत मौजूद है आपके पास? हाँ या ना में जवाब दें, लफ्ज गैब के साथ। अभी मेरा दिल में गैब लफ्ज के साथ नहीं है, लेकिन नहीं है, रुकिए, मुताला ही गलत है आपका। सुनिए, मैं हाँ वो बाद में वजाहत दे देना। इमरान भाई मेरी भी तो सुन लें। आपने कहा लफ्ज गैब के साथ आपके पास कोई आयत करीमा मौजूद नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये था, आप ना कुरान शरीफ में ही मौजूद नहीं है, और आपके पास इसीलिए मौजूद नहीं है क्योंकि कुरान शरीफ में ही मौजूद नहीं है। सुनिए, हमारा सवाल था कि गैब में, चूंकि आपने गैब में ही पुकारने को शिर्क कहा है, तो हम आपसे मुतालिबा जो करेंगे वो गैब में ही तो पुकारने का करेंगे। अगर आपने कहा होता मुतलकन पुकारना अल्लाह के सिवा ये शिर्क है, तो हम आपसे मुतलकन पुकारने की दलील मांगते, भाई कहाँ लिखा है कि मुतलकन पुकारना शिर्क है? आपने कहा गैब में पुकारना शिर्क है, तो फिर हम गैब में ही तो पुकारना शिर्क है इसकी दलील मांगेंगे। तो आप दलीलें वो दे रहे हैं जिसमें मुतलकन है, अल्लाह फरमाता अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो, ये मुतलकन है, इसमें गैब का और जाहिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने आपसे कहा कि गैब में पुकारने की शिर्क है, ये दलील दो। आपने कहा कि लफ्ज खास के साथ मुतालिबा करना गलत है। अब इस चीज को समझिए, हाँ ना में जवाब देना। अच्छा ये बताओ, हुक्म कुफ्र लगाना, किसी शख्स पे हम हुक्म कुफ्र जब लगाएंगे तो बिल्कुल बेऐनी ही उसका कुफ्र जाहिर होगा और उसके कुफ्र पे बेऐनी ही नस मौजूद होगी कुरान में, तभी तो उस पर हुक्म कुफ्र लगेगा। हाँ या ना इमरान भाई? हुक्म कुफ्र नस की बुनियाद पर लगता है, यानी कि कुरान शरीफ की एक ऐसी आयत जिसमें बिल्कुल वाज़ेह लिखा हो, नस मौजूद हो, उसकी बिना पे हुक्म कुफ्र या शिरक लगता है, या फिर कयास की बिना पे हुक्म कुफ्र या शिरक लगता है? ये बताएं,
कयास पे लगता है शिर्क और कुफ्र का हुक्म, या फिर नस मौजूद हो उस पे लगता है, ये बता। जब वो किसी या दिन से इनकार करते नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कुफ्र का हुक्म जब ही तो लगा सकते हैं हम जब नस मौजूद हो कुरान में। हुक्म शरी, शरी बिल्कुल साफ नस मौजूद हो, यही ना। हाँ माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, हाँ कुफ्र का हुक्म लगाने के लिए, शिर्क का हुक्म लगाने के लिए नस से कतई मौजूद होना चाहिए, यही है ना। क्या कहा? हाँ, कुफ्र या शिर्क का हुक्म लगाने के लिए कुरान से नस से कतई मौजूद होना चाहिए जिसमें कोई तावील ना हो। मैं सच सही कह रहा हूँ कि गलत? हाँ हमें आप बात किधर ले जा रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा। नहीं मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे किसी शख्स पे हुक्म शिर्क या कुफ्र लगाने के लिए कुरान शरीफ से हमें नस से कतई चाहिए होती है या कयास करके भी लगा सकते हैं? क्या से वो नहीं चलता वो, कयास से नहीं चलता, नस से कतई चाहिए। हाँ नस से हाँ नस से कतई चाहिए। और नस से कतई क्या होती है? बिल्कुल जो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ हो, जिसमें कोई तावील ना हो, जिसमें कोई तफसीर की और जिसमें कोई तशरीह की गुंजाइश ना हो, इसी को तो नस से कतई कहते हैं ना। हाँ हाँ तो अब ये बताइए, जब आपके पास, क्योंकि आपका दावा है कि गैब में पुकारना शिर्क है, तो गैब में पुकारना शिर्क है, आपके पास अभी आपने कहा कि कोई दलील मौजूद आपके पास नहीं है कि गैब में पुकारना शिर्क है, जबकि आपका दावा भी यही है कि गैब में पुकारना शिर्क है। तो आपके पास नस मौजूद कहाँ है? जितनी भी आयतें आप पेश कर रहे हैं उसके अंदर गैब का जिक्र ही नहीं है, यानी कि तावील मौजूद है, वहां पर मुतलकन हुक्म है। तो आप कयास की बिना पर इस्तदलाल, आपने खुद भी कहा दौरान गुफ्तगू कि आपने इस्तदलाल किया है, तो इस्तदलाल की बिना पर, कयास की बिना पर हुक्म शिर्क आप कैसे लगा सकते हैं, जबकि आप खुद भी ये कह रहे हैं कि कयास से हुक्म शिर्क कुफ्र नहीं लगता? ये बता दें खाली। आप भी तो कयास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब साबित करते तो हमने ये कब कहा? तो हमने तो ये कहा ही नहीं, तो हमने तो ये कहा ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारना फर्ज है, वाजिब है। अगर हम फर्ज वाजिब कहेंगे तो हमें नस दिखानी पड़ेगी। एक मिनट इमरान भाई ये बताइए, जो जन्नी अकीदा होता है, सुनिए, जो जन्नी अकीदा होता है, जन्नी अकीदा, मुझे ये बताइए, जन्नी दलील जो होती है और जो जन्नी अकीदा होता है उस पे नस मौजूद होने से वो जन्नी अकीदा बनता है, या फिर जन्नी दलील मौजूद होने से वो जन्नी अकीदा बनता है? ये बताइए। देखिए आप मुझे ऐसे सवाल करना करे ताकि रात बहुत हो गया, ठीक है? हाँ वो नहीं, वो इसलिए ना क्योंकि किसी भी हम जब शिर्क पे बात कर रहे हैं ना तो पूरी वजाहत के साथ ही करेंगे। हमारा जन्नी अकीदा है, यानी कि जन्नी अकीदा उसे कहते हैं कि जिस अकीदे पे नस मौजूद ना हो, जैसे, क्योंकि अगर नस मौजूद होगी तो फिर वो जन्नी अकीदा नहीं होगा, वो अकीदा होगा कतई, यानी कि उसके ऊपर फिर नस मौजूद है। तो जन्नी अकीदा उसे कहते हैं कि जिसके ऊपर नस मौजूद ना हो, जिसको फर्ज ना कहा जाए, वाजिब ना कहा जाए। तो जन्नी अकीदा उसे कहते हैं कि जिस अकीदे पे अगर कोई आ जाए तो भी कोई मामला नहीं है, और इस अकीदे को कोई ना माने तो भी कोई हरज नहीं है। तो हमारा जो अकीदा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारने का, ये जन्नी अकीदा है, यानी कि अगर कोई शख्स पुकारता है तो भी कोई मामला नहीं, नहीं पुकारे तो भी कोई मामला नहीं। अगर हम फर्ज कहते तो फर्ज की दलील कुरान से नस से दिखाना पड़ती। पहले आपने तस्दीक किया है कि दुआ एक इबादत है, फिर आपने इनकार कर दिया। कौन सी दुआ इबादत है? वही तो आपसे पूछ रहे थे, क्योंकि दुआ तो वो भी है जो हम किसी को जाहिर दुआ। हाँ मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है, सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको पुकारा कि उन परिंदों को जो के जिनको उन्होंने काट के कीमा बना के पहाड़ों के ऊपर रख दिया था, और उसके बाद उन्होंने उनको पुकारा। ये भी दुआ, लफ्ज दुआ है वहां पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा पुकारते थे, वहां भी कुरान में सूरह नूर की आयत नंबर 63 में लफ्ज दुआ मौजूद है। तो कौन सी दुआ, अब आप ये भी तो बताएंगे ना कि कौन सी दुआ इबादत है? यही आपसे अंसार भाई पूछ रहे थे। कुरान में, हाँ मैं बताता हूँ, ये जो दुआ है, ठीक है, ये जो ला तजालु दुआ और रसूली, आपने जो सूरह नूर की आयत पढ़ी, सूरह नूर में क्या पढ़ा आपने? हाँ वही
हाँ, यानी तुम दुआ लफ्ज है, ठीक है यहाँ पर। हाँ, तो दुआ का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ दुआ पुकारना है, क्या पुकारना है, बुलाना, पुकारना ये है। पुकारना या बुलाना? हाँ, बुलाना दोनों या ये पुकारना? हाँ, पुकार के ही बुलाया जाता है। हाँ ठीक है, तो ये लफ्ज दुआ है ना? हाँ ठीक है। तो ये हाँ बिल्कुल दुआ आया है। हदीस में भी आया है कि दुआ हुआ इबादत। हाँ तो ये बिल्कुल, इबादत हुआ ना? हाँ बिल्कुल, दुआ हुआ इबादा, ये आया है हदीस शरीफ में। तो और दुआ हदीस शरीफ में इबादत है। हाँ हाँ बिल्कुल, सुने बात सुने, तो दुआ एक ठीक, इबादत हो गया ना? हाँ बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करे तो ये सहाबा तो कर रहे हैं। अब ये बताओ, ये जो दुआ है जो सहाबा नबी अलैहिस्सलाम को पुकारते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को पुकारा उनको कीमा कीमा करने के बाद, तो यहाँ कौन सी दुआ को इबादत कहा गया है, ये तो बताएं। मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पर सूरह बकरे की आयत नंबर 186 में आया है इन्नी करीबुन उजीबु दावती दाई इज़ा दाअनी, जब बुलाते हैं पुकारते हैं, ठीक है। कौन पुकारते हैं? तो अल्लाह को पुकारना और मखलूक को पुकारने में फर्क है भाई। मैंने पूछा कि आप दुआ कौन सी दुआ इबादत है, मैंने ये पूछा, क्योंकि दुआ अब कई तरीके के कई मायने हो गए, पुकारना, बुलाना, और फिर जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ इबादत है, अल्लाह को पुकारना, किस चीज को पुकारने को इबादत कहा गया, ये तो बताओ। वो जो इस्तिआनत है ना, इस्तिआनत समझो। अब देखो, मैं तो तुम नहीं समझ पा रहे हो उस चीज को भी। देखो, अगर मैं तुम्हें यहाँ फोन पे यहाँ तुम्हें पुकार रहा हूँ और भी इमरान भाई तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तो मैंने ये तुम्हें आवाज दी, ये तुम्हारी इबादत नहीं होगी। हालांकि यहाँ भी लफ्ज दुआ ही, अगर मैं अरबी में पुकारूं तो यहाँ पर कोई अरबी इसकी करे तो दुआ लफ्ज बन के आएगा। लेकिन जब मैं अल्लाह को पुकारूंगा कि ए अल्लाह, तो यहाँ भी दुआ लफ्ज बन के आएगा। तो यहाँ चूंकि मैं अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह को पुकारा, चूंकि अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह से ताल्लुक रखना, ये इबादत ही होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया दुआ इबादत है, तो अल्लाह से जो दुआ की जाती है वो इबादत है, ना कि जो बंदों को पुकारा जाए वो इबादत होगी, क्योंकि उसमें तो बंदे से बंदा मुखातिब है, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है। वो पुकारना है, अल्लाह को पुकारना है, वो बंदों को पुकारने की तरह नहीं है। अल्लाह को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कबीर है, उसमें पुकारता है। और अल्लाह जो बंदों को पुकारते हैं वो हय्युन हाज़िरुन यक़दिर वाला, यानी वो हाजिर है, वो जो मौत शुदा नहीं है। वो अब एक चीज ये बताओ, सजदा करना इबादत है कि नहीं है? इमरान भाई, सजदा करना इबादत है कि नहीं है? हाँ, सजदा भी इबादत है ना। लेकिन तुम अगर बगैर नियत के अपने वालिद के सामने जैसे सजदे की हालत में चले गए, तो क्या तुम अपने वालिद की इबादत करोगे? नहीं है ना इबादत। लेकिन जब तुम सजदा अल्लाह को करोगे, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात मुकम्मल तो सुन लो, फिर मैं सुन लेता हूँ ना। जैसे कि तुमने अगर अपने वालिद के सामने सर झुकाया, लेकिन तुम्हारी नियत नहीं थी कि तुम वालिद की इबादत करोगे, तो ये वालिद की इबादत नहीं होगी। इबादत तभी होगी जब तुम अपने दिल में ख्याल कर लोगे कि मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ। तो चूंकि अल्लाह से ताल्लुक रखना, अल्लाह को याद करना, ये इबादत है, तो सजदा तब इबादत कहलाएगा। ठीक है। बुत के सामने अगर तुम कोई मुशरिक अगर सर झुका देता है, तो वो बुत की इबादत नहीं होती। लेकिन वो अल्लाह का इनकार करके वो ये कहता है कि मैं इसकी इबादत करता हूँ, तब वो मुशरिक कहलाता है। ठीक है। ठीक इसी तरकीब से जब बंदा अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह को याद करके, दिल में तहैया करके अल्लाह को सजदा करता है, तब वो अल्लाह की इबादत बनता है। समझ रहे हो? ठीक ऐसे ही जब अल्लाह को पुकारा जाता है, तो उसमें अल्लाह का नाम आता है, अल्लाह से ताल्लुक का वास्ता आता है, तो ये इबादत बनती है। किसी और को पुकारा जाए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को पुकारा, नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा पुकारते थे, जन्नत मांगते थे, खाना मांगते थे, गैबी चीजें मांगते थे, तो ये इबादत नहीं कहलाएंगी। इबादत तब होंगी जब अल्लाह का नाम आएगा, क्योंकि अल्लाह की नाम में इबादत है ना। तो ये मामला है। और ऐसे तो मौला अली रदी अल्लाह अन्हु को का चेहरा देखना भी इबादत है, तो क्या वो मौला अली की इबादत होगी? ये बताओ जरा। होगी तो अल्लाह ही की ना, क्योंकि हमारी नियत ये है कि हम मौला अली का चेहरा, साहबा जो देखते थे उनकी जो नियत होती थी वो यही होती थी कि मौला अली का चेहरा हम इसलिए
देख रहे हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की इबादत है, तो नियत अल्लाह की इबादत की है, तो मौला अली का चेहरा देखने से भी अल्लाह की इबादत हो रही है, ना कि मौला अली की। और माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। मौला अली के चेहरा देखने से इबादत है, इसका सनद हाँ, वो मैं इंशाल्लाह दलील दे दूंगा। और माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, तो अब क्या माँ बाप की इबादत हो रही है? वो नहीं हो रही, क्योंकि दिल में अकीदा ये है कि अल्लाह की इबादत होगी इनका चेहरा देखने से, तो नियत की बिना पर अल्लाह की इबादत होगी, ना कि माँ बाप की। ठीक इसी तरकीब से जब हम किसी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे को पुकारते हैं, तो हमारे दिल में नियत ये होती है कि ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की अता से हमें अता करते हैं, तो ये बंदे की इबादत नहीं होती, समझ रहे हैं? तो जो हमारी नीयत होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारने की, तो वो इबादत अल्लाह की होती है, समझ रहे हैं आप? और जो हम डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करते हैं, तो वो दुआ उसको कहा गया है कि वो इबादत है अल्लाह की, नबी अलैहिस्सलाम ने। और जब आप ये पूरी हदीस पढ़ेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ वजाहत भी मौजूद है कि फिर वो दुआ कौन सी दुआ है, फिर वो दुआ करके भी बताई गई है इसी हदीस शरीफ में, सुनन नबी दाऊद की। और वो दुआ डायरेक्ट अल्लाह से की जा रही है। तो ये अल्लाह से जो दुआएं होती है उन दुआओं को इबादत कहा गया है, ना कि बंदे को पुकारना या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारना या औलिया किराम को पुकारना। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह की जो दुआ है वो दुआ इबादत है, ठीक है? जो अल्लाह के लिए करते हैं ना, जो अल्लाह के लिए जो दुआ करते हैं, यानी अल्लाह से आप कहते हैं कि अल्लाह मेरा इबादत कबूल कर लो, ठीक है, मुझे ये चीज मेरे एग्जाम। अच्छा इमरान भाई, सुने इमरान भाई, आप अरमान नाम है मेरा। हाँ सुनो, अरमान नाम है, अरमान। हाँ हाँ भाई, अरमान भाई, वो हमें जरा दूसरी जगह भी जाना था ना, तो टाइम तो वो ज्यादा हो ही गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा कब बात करनी है। हाँ, और ये चीज आप ख्याल में रखें कि हम तो फर्ज वाजिब नहीं कहते, तो नस्से कतई हमारे जिम्मे नहीं है कि हम दिखाएं। तुम शिर्क का हुक्म लगा रहे हो, तो वाज़े पानी की तरह बिल्कुल साफ शफाफ दलील लफ्ज गैब के साथ तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास नस्से कतई होना चाहिए, क्योंकि तुम शिर्क का हुक्म लगा रहे हो। तो कोई ऐसी दलील लेके आना। तो मुबाह समझते हैं ना? मुबाह का मतलब होता है कोई पुकार ले तो भी कोई मसला नहीं है, ना पुकारे कोई भी मसला नहीं है, उसकी मर्जी है। मुस्तहब नहीं, मुबाह। मुबाह 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 का मतलब होता है, मतलब ये होता है कि अगर कोई पुकारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो उसकी मर्जी है, कोई हुक्म नहीं लगता। और अगर कोई ना पुकारे तो भी उसकी मर्जी है, कोई हुक्म नहीं लगता। मुबाह का मतलब होता है ये इबादत के मुबाह में हुक्म नहीं 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 ना ना ना, इबादत के हुक्म में नहीं आता, मुस्तहब में भी नहीं आता। मुबाह दुनिया में क्यों फिट कर रहे हो? ये तो उसूल वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पे भी हमारे पास दलील मौजूद है। मुबाह का मतलब ये होता है कोई इंसान कोई काम कर ले तो उसकी मर्जी है, और कोई ना करे तो भी उसकी मर्जी है, इस पे कोई हुक्म नहीं लगता। ये तो शरीयत में नहीं है, शरीयत के बाहर है ना? नहीं, बाहर का कौन कहता है शरीयत के बाहर है? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु से मौजूद है। सुनो दलील बता रहा हूँ कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने को शरीयत का और शरीयत समझते हैं, नेकी का काम समझते हैं, ठीक है, तो इसको आपको दलील देना चाहिए। हाँ, बात ये नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम को पुकारने को नेकी का नाम नहीं दे रहे हम। पुकारने में जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं हम और उन पे जब दुरूद पढ़ते हैं हम, तो ये नेकी है, ना कि लफ्ज़ पुकारना नेकी है। समझ ही नहीं रहे आप? लफ्ज़ पुकारना, उनसे कुछ मांगना, ये नेकी नहीं है। नहीं, अभी आपको सुन पा रहे हैं, अभी आप पुकार तो नबी से सुन पाएगा डायरेक्टली भाई। 1400 साल से लेके आज तक मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, असलाफ, सलफ सालिहीन उनको पुकारते चले आए हैं, तो सबका अकीदा यही था ना कि वो सुनते हैं तभी तो पुकारा जाता है। तो इमरान भाई, इस बात पर टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा या नहीं? हाँ बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। अरे भाई पुकारा, हम इंशाल्लाह दलीलें भी देंगे, और असलाफ ने भी पुकारा है। और सुने पहले हो, और सुने बात टॉपिक ठीक कर लेते हैं आज। हाँ, आपके साथ हमारा बात होगा, ठीक है, बहुत दिन बाद बात होगा, ठीक है? चलिए, वो मुझे आप बता देना कॉल करके जब भी बात हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब आए, टॉपिक यही है ना कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं? ये नहीं, ये नहीं। तो किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा या नहीं? आपको हदीस पे
किसी सहाबी ने, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ ना कि सहाबा कराम से लेकर मुहद्दिसीन तक, मुतकद्दमीन से लेकर मुताखिरीन हाँ तक, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साबित हाँ करेंगे। चलिए मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये तो हाँ मैं हमारे जो करूँगा बात, मैं आपको बता दूंगा डेट। आप बता देना, लेकिन ये तो जो हम अमल कर रहे हैं उसके ऊपर दलीलों पे बात हो रही है। लेकिन जो आपने शिर्क का हुक्म लगा रखा है गैब में पुकारने को, तो ये आप कब साबित करेंगे, उसका भी कोई टाइम बता दें। मैं बता दूंगा ना फोन। देखे मेरे भाई इमरान भाई, ये नंबर मुस्लिम पर शरीफ की, ये मेरा ही है, ये भी मेरा ही है, मुस्लिम शरीफ की हदीस व्हाट्सएप शरीफ है इमरान भाई। हाँ इस पे व्हाट्सएप है। हाँ ये इसमें भेज दूंगा, मैं बता दूंगा जब भी बात करने का मेरा। हाँ ठीक है, लेकिन इमरान भाई ये चीज जहन नशीन कर ले आप, मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी को अगर किसी ने काफिर कहा और वो काफिर नहीं है तो हुक्म पलट जाता है, तो इसका मतलब कि वो जो कह रहा है वो काफिर हो जाता है। तो अगर तुमने नस्से कतई से हुक्म शिर्क का हुक्म यही होता है कि इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है, तो अगर तुमने हुक्म शिर्क नस्से कतई से कुरान शरीफ से या हदीस मुतवातिर से नहीं दिखाया, तो मुस्लिम शरीफ के हदीस शरीफ के मुताबिक मुशरिक आप हो जाओगे। सही इब्ने हिब्बान के मुताबिक हुक्म शिर्क का फतवा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लगाएगा वो खुद मुशरिक होगा, जिस पे लगाया जाएगा वो मुशरिक नहीं होगा, जो फरमाया ना हदीस शरीफ में। तो इसके मुताबिक आप मुशरिक साबित हो जाओगे, काफिर आप साबित हो जाओगे। इसलिए सोच समझ के दलील लेके आना। कयास की बुनियाद पे कि अल्लाह ने ये फरमाया इसका मतलब ये है, ये मत करना, ठीक है। और अमन भाई इनसे एक बात और कह दो कि आगे बात करें तो तासुब का चश्मा उतार के बात करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करें। जी बिल्कुल, हम नहीं लगाते भाई किसी पे, कोई नहीं मांगता। न जैसे अभी कुरान की आयत बता के अपना मतलब डाल रहे हैं और चलने नहीं दे रहे हैं, तो उस बात को मैं बोल रहा हूँ, इनसे बोलना जो मतलब बने वही मतलब बताएं, कयास कराएंगे तो कयास फिर हम भी करेंगे। हाँ यही बात है इमरान भाई, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप जैसे अभी कह रहे थे ना अंसार भाई से कि तुम लफ्ज़ गैब की साफ साफ दलील मांग रहे हो, ऐसे कैसे होता है, तो वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि गैब में ही पुकारने को आपने शिर्क कह रखा है, इसलिए गैब में पुकारने की दलील मांग रहे थे वो। ये तो बिल यार जायज मुतालबा यार, ये तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने इसी को शिर्क कहा है। लगाना जी, इस दायरे इस्लाम से बाहर कर रहे हो किसी को, तो उसके लिए आपको तो नस्से कतई चाहिए नहीं मैंने कब दायरे इस्लाम से बाहर करा, मैंने कहा कि अगर किसी मुशरिक कह रहे हो यार, मुशरिक कह रहे हो तुम भाई, मुशरिक कह रहे हो। आपको मैंने मुशरिक कहा तो क्यों सलाम सुने बात सुने, नबी अलैहिस्सलाम को पुकारने को शिर्क कह रहे थे आप। हाँ वो शिर्क तभी होता है ना, तो भाई हम तो पुकार रहे हैं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरह, जो अल्लाह के जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पुकार कर सुनते हैं अल्लाह की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मतलब अल्लाह की तरह करते हैं। हाँ भाई हम तो ये समझ के नहीं पुकारते, अल्लाह के में शरीक कर दे तो हेलो अरमान भाई। हाँ बोले। मैं ये कह रहा हूँ, अब आगे जब भी बात करो ना तो आप दलाइल अपने पास रखना और ये मत बोलना कि मैंने ये सुना है या मैंने ये देखा है, आपको उसको दलाइल रखने अपने पास। जी आपको वाला काम आपको लफ्ज़ गैब के साथ साबित करना होगा इमरान भाई, क्योंकि आपने हुक्म शिर्क लगाया और शिर्क का हुक्म सरी साफ वाज़े आयत में होना चाहिए, वरना तावील से शिर्क और कुफ्र साबित नहीं होता, फर्ज भी साबित नहीं होता, वाजिब भी साबित नहीं होता, तावील की बुनियाद पर। ठीक है भाई रखते हैं फोन। ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम अपनी तरफ से आपका। बरेली शरीफ में, यूपी में रहता। जी यूपी बरेली। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम। ये दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा